CD number 5. Once, Mr. Barker had a chance to give a talk in the National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur. They fixed the dates for the talk and repeatedly changed it. And after a week or so, fixed the talk on 14th March 2005. That is also in the previous day after the closing of office hours by Rita Golabkar. The next day, however, was not suitable since Mr. Barker was already engaged to give a talk in SISI. After a long tussle, needy officers came to know that Mr. Barker is busy in his talk in Small Industries Service Institute, Nagpur. Luckily, needy officials sent a vehicle to Seminary Hills, where Mr. Barker was busy in a class for the whole day and was moving out of the city the same night. The needy officers contacted the then SISI director, Sri A.S. Madbhavikar, and he informed them that Mr. Barker is engaged in their institution and he is there in the class from the morning. Needy officers contacted Mr. Barker on mobile and conveyed to him that they have fixed his talk at 4:30 p.m. When he entered the room of directors SISI, Mr. Madhvavikar was surprised to see the exact communication he had been told by his deputy, Sri Meshram, that Mr. Barker came out of class and asked the other visiting lecturer to take his class at 3:30 p.m. onward. And Mr. Barker's car moved towards Needy to give his talk. Journalist Barker's motivation talks had been held in central and state government offices, including industries of repute such as Tata's, Birla's, Exide Batteries, Mahindra and Mahindra, and in organizations such as MIDC, Railway, Tarapur Power Station, Civil Defense College, Port Trust, and so on. Mr. Barker was a guest lecturer in National Fire College, Ministry of Home Affairs, Government of India, Government Polytechnic College, Nagpur, and in Small Industries Service Institute, Industries Department, Government of India. Since journalist Sharad Barker's motivation talk audio CDs on Soichiro Honda and Henry Ford, Japan Ka Saga, Mary Saheli, and on Polke Master, loaded the flock of central and state government officers and industrialists at large in Maharashtra and in Goa. Mr. Barker has its journalistic views and criticisms through his talk on government-aided institutions. Following are the observations of Mr. Barker about the National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur, and other government organizations about their functioning in Hindi. 1960 के दशक में हमारा हिंदुस्तान ब्रिटिश सरकार के चंगुलों से निकल गुजरा था।
1960 के दशक में ही मैं एक कुछ 5 साल का उम्र का बच्चा हूँ। नागपुर शहर में मैं लोहा पुल सीतावर्ली में रहता था। उस जमाने में कोई भी चीज यदि पेपर में आती थी तो उसकी चर्चा आकाशवाणी और पत्र पत्रिका से काफ़ी लोगों के दिल दिमाग में बैठ जाती थी। उसी दशक में नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में आ बसा। वो जमाना भी काफ़ी इस तरह का था कि हम लोग हमेशा दूसरे देशों के साथ लड़ाई करना या उनसे किस तरह से बचा जाए, इस तरह के संविधान अपने आप के रखते थे। मेरा जहां तक ख्याल है 1960 के दशक में नेरी जब नागपुर में शुरुआत करने का नेहरू जी का जब संकल्प हुआ, सो मेरे पिताजी मुझे हमेशा कहते थे, देखो प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने यहाँ पे अपने नागपुर में एक संस्थाएं शुरू करना सोचा है, आपको इसी संस्था में एक दिन रिसर्च करना है। वो जमाना चले गया, वक्त गुजरा और कुछ दिनों के बाद इस संस्था के प्रति मेरा एक दिलचस्पी शुरू होना एक स्वाभाविक बात हो गई। कभी कभार तो नेरी का अर्थ मैं एन से नेहरू लगाता था, क्योंकि बचपन में बताई हुई जो भी बात होती है वो हमारे दिलो दिमाग में घर करके बैठ जाती है। एंड स्टार्ट फॉर नेहरू, दैट वॉज द वर्ड आई रिपीटेड इन माई माइंड ऑफन एंड ऑफन। दिन निकलने के बाद मेरा इस संस्था की तरफ देखने का एक दृष्टिकोण ही अलग हो गया। उस दशक में हम लोग घर के बाहर तो उतना नहीं निकल पाते थे, या हमारे जो बड़े भाई लोग थे, रिश्तेदार थे, वे भी हमें आज के बच्चों के समान कोई ट्रिप पे लेके जाने की बात उस जमाने में बिल्कुल ही नहीं थी। यदि आपको कहीं जाना है, वो भी स्कूल के किसी कार्यक्रम में या फिर किसी शादी में, तभी आप अपने बुजुर्गों के साथ घर से निकल पड़ते थे। 1972 के जमाने में मैं बाड़ी से लेके अजनी, दैट इज ऑन वर्धा रोड, हमारे प्लॉट पे शिफ्ट हो गए। जब मैं पहली बार वो रोड से गया तो नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के गेट के सामने एक 5 मिनट के लिए स्तब्ध खड़ा हो गया और मेरे पिताजी के दिए हुए शब्द मेरे याद आने लगे। इस संस्था के बारे में काफी बार मैंने काफी अच्छाई सुनी थी। एक बार तो किसी व्यक्ति ने हमें बताया था कि चाइना का कोई व्यक्ति, चाइना का कोई फौजी हमारे नौजवान ने पकड़ा और उसको बंदी बना के हमारे जेल में रखा। बाद में बताया गया कि जो व्यक्ति पकड़ा गया उसी व्यक्ति ने बाद में एक प्लेन का अनुसंधान लगाया और वो अभी इंडिया का स्वयं का प्लेन बना है। हमारी उस बुद्धि में हमें ऐसा लगा कि नेरी के सामने ही जेल है, शायद हो सकता है जेल में उस आदमी को रखा होगा और उसके सामने में नेरी है, उसको वहां रिसर्च करने के लिए बताया होगा। लेकिन किसी पराये देश का फौजी बंदी, वो बंदिश तो आदमी
अपने देश में इस तरह का काम करेगा, ऐसा हमें आज दिखाई नहीं देता। लेकिन वो बचपना ही ऐसा था कि किसी ने बता हुई बात हमारे ध्यान में घर करके रह जाती थी। और इसी तरह मेरा एनवायरमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नेरी के बारे में एक दिलचस्पी लेना शुरू हो गया। आज मैं एक परिपक्व व्यक्ति बन गया और पत्रकारिता में मैंने अपना एक नाम कमाया। मेरा पत्रकारिता में प्रथम स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस से ही कुछ वार्तालाप होती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक मोटिवेशन टॉक देने की एक तैयारी मैंने शुरू की और उस मोटिवेशन टॉक के लिए मुझे कभी कभार सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ऑफिसर को भी मिलने की ज़रूरत आन पड़ी। हमारे नागपुर में सेंट्रल गवर्नमेंट के काफ़ी दफ्तर हैं और वो सेमिनरी हिल्स नागपुर में ही अधिकतर बसे हैं। वहीं सीजीओ कॉलोनी कहलाई जाती है। मेरे मित्र रीजनल लेबर ऑफिसर सेंट्रल एक बार मुझे सुनने के बाद कहने लगे कि आपके ये टॉक आप हमारे अंतर्गत आने वाले संस्था को भी देने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं। इसलिए अहमद साहब ने मुझे एक लिस्ट दी और उसमें वेस्टर्न कोलफील्ड, नेरी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आते हैं उनकी एक लिस्ट दी और मुझे वहाँ के HR डिपार्टमेंट से मिलने के लिए कहा गया। इसी बात पर जब मेरे दिमाग में नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च की बात आई तो मैंने सबसे प्रथम प्रयत्न नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में करने की कोशिश की। प्रथम तो मेरे जानकारी के लिए उन्हें एक पत्र दिया और मेरे दफ्तर से मेरे एक आदमी को वो पत्र लेकर भेजा। तो पत्र लेने की तो बात अलग हुई, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के डिस्पैच क्लर्क ने उस पत्र को न लेने की अपनी भूमिका निभाई। जब वो लौटा तो मैंने पूछा उसे कि ये पत्र क्यों नहीं पहुंचा गया, तो उसने मुझे जवाब में बताया कि सर, ही हैज़ नॉट एक्सेप्टेड आवर लेटर। जब मैंने पूछा कि भाई व्हाई नॉट ही हैज़ एक्सेप्टेड आवर लेटर, तो मेरा ऑफिस का आदमी कहने लगा, सर मुझे उसकी जानकारी नहीं, लेकिन वो कहने लगा कि इस तरह के पत्र हम लोग नहीं लेते हैं, आप बताइए ये पत्र किसको देना है। मैंने कहा उसे, अरे भाई, डायरेक्टर के नाम से पत्र लिखा गया है, वो डायरेक्टर के पास जाएगा, बाद में वो सोचेंगे कि उनके किस अफसर के पास ये पत्र जाना चाहिए। इसलिए 2 या 3 दिन के बाद मैं स्वयं वही पत्र लेकर नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में दाखिल हुआ। दाखिल होते ही वहाँ के सिक्योरिटी ने मुझे पूछा कि आपको किधर जाना है। जब मैंने कहा कि भाई ये पत्र मुझे देना है, तो उन्होंने फिर प्रश्न किया कि आपको किस व्यक्ति के पास जाना है। मैंने उनसे कहा कि मुझे व्यक्ति मालूम नहीं, ये मेरा दफ्तर का पत्र है, ये मेरे दफ्तर की चिट्ठी है जो मुझे इस दफ्तर को पहुंचानी है। कुछ समझ असमझ में उस व्यक्ति ने मुझे
अंदर जाने दिया। अंदर जाते ही जब मैंने वो लॉन में बैठे हुए किसी एक व्यक्ति को पूछा कि इन्वर्ट क्लर्क कहाँ बैठता है, तो उन्होंने मुझे दिशा दिखाई और वो ऑफिस के तरफ मैं जा पड़ा। पहले फ्लोर पे गया तो डिस्पैच क्लर्क का कैबिन पूछने की मैंने एक व्यक्ति को अपनी कल्पना दी। तो व्यक्ति कहने लगा, आप यहां से सीधा चले जाइए। सीधा चले जाने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि उस आउटवर्ड रिसीव क्लर्क की जो कैबिन थी वो नज़दीकी थी, लेकिन वो व्यक्ति शायद अपने काम में बिजी होगा करके उसने सामने चले जाओ इसलिए मुझे कह दिया होगा। और नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की कल्पना मेरे दिलो दिमाग में जो बैठी थी वो तो ये थी कि यहाँ सभी लोग साइंटिस्ट काम करते हैं, यहाँ सभी लोग विद्वान हैं, यहाँ सभी लोग रिसर्च का काम करते हैं, लेकिन नहीं, रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी चपरासी, क्लर्क, इनवर्ड क्लर्क, आउटवर्ड क्लर्क, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर, ये तो लोग हो गई। जब मैं क्लर्क के पास गया तो हिंदी साइडर वो व्यक्ति मुझे 10 बार पूछने लग गया ये पत्र किस बारे में है। अब उस आदमी को मैं क्या समझाऊं, ये मेरा अपना प्रश्न मुझे बन गया। और मैंने उस आदमी को कहा कि भाई आप पत्र ले लीजिए। तो बोले, साहब पत्र तो ले लोगा लेकिन दोगा किसे? मैंने कहा, यार पत्र, ये चिट्ठी डायरेक्टर के नाम से लिखी गई है, आप डायरेक्टर की तरफ इसको मार्क कर दीजिए और बाद में वो सोचेंगे कि ये पत्र किसी की तरफ। लेकिन उसने पूछा, साहब आपको हमारे ऑफिस से लेना क्या है? आपका चेक है क्या? आपने कोई माल सप्लाई किया है क्या? मुझे जानकारी में बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक डिस्पैच क्लर्क लेटर देने के बाद भी मुझे इस तरह के प्रश्न क्यों पूछ रहा है। डिस्पैच क्लर्क का काम क्या होता है? चिट्ठी ली, वो डायरेक्टर के पास भेजी, डायरेक्टर उसको देखने के बाद कहीं मार्क करेगा और उसको लगेगा कि ये चिट्ठी का संबंध हमारे दफ्तर से कुछ नहीं आता है, तो उसे खराब टोकरी में फेंक देगा। मैं वो चिट्ठी देने के बाद, उसे 2 बातें करने के बाद जब मैं लौटा तो एक 15 दिन के बाद जब मैं वापस किसी टूर से वापस आया तो मैंने प्रयत्न किया और डायरेक्टर के ऑफिस में फ़ोन किया कि हमने इस तरह की चिट्ठी आपके दफ्तर में भेजी थी और वो चिट्ठी का जवाब हमें नहीं मिला। बाद में पूरी छानबीन करने के बाद एक 8 दिन के पास मुझे बताया गया कि मेरी चिट्ठी वहाँ तक पहुँची नहीं। मैंने उन लोगों को कहा कि आपके दफ्तर ने मुझे रिसिप्ट दी है पत्र मिलने के लिए और वो स्टैम्प मेरे पास है, चिट्ठी कहीं तो भी होगी। तो नेशनल एनवायरमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अफसर ने मुझे कहा कि आप एक काम कीजिए, आप और एक चिट्ठी भेज दीजिए। और नेशनल एनवायरमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से एक बात करने का सिलसिला उस दिन से शुरू हो गया। नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में भाषण देने के लिए मुझे या स्पीच देने के लिए इसलिए जाना था कि वो संस्था क्या है, वो संस्था क्या करती है, वो संस्था किस तरह की रिसर्च करती है। इसलिए मेरा लगाव देखने के बाद काफ़ी दिनों के बाद, शायद हो सकता है यदि मैंने जनवरी में चिट्ठी लिखना शुरू किया होगा तो मार्च में 1, 2, 2.5, 3 महीने के बाद नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के किसी एक व्यक्ति के साथ मेरी चर्चा होने शुरुआत हो गई। और मैंने जब उन्हें बताया कि मेरे टॉक्स बड़े बड़े संस्था में हुए हैं, मैं आपके संस्था में भी एक टॉक फ्री में देना चाहता हूँ, तो उन्होंने उसमें दिलचस्पी बताई और एक दिन फिक्स करने के लिए बात शुरू हो। लेकिन उनकी तरफ से कोई भी रिप्लाई आया नहीं। मैंने फिर अपने तरफ से कोशिश करके
उन लोगों को प्रेरित किया और एक दिन फिक्स होने के वो डेट, वो समय, वो मौका मुझे नसीब हुआ। लेकिन बात उलट हुई, बात विपरीत हुई। उसी दिन मुझे नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक टॉक देना था जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के लिए था। और मिसेस मुखर्जी, कमिश्नर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, इन्होंने उसी नेशनल इंस्टीट्यूट एसआई में जब लोगों को भेजा था अपने कर्मचारी को, तो उन्हें वो कार्यक्रम काफ़ी पसंद आया था, इसलिए दूसरी बैच भेजी गई थी और मेरा टॉक काफ़ी अच्छा है करके उस वक्त के डायरेक्टर श्री SM मधभाविकर ने मुझे कहा था कि आपको इस वक्त के पूरे क्लास लेनी होगी। मेरे पत्रकारिता के नाते से जब मुझे बाहर जाने के लिए मैं निकलना चाहता था तो मैंने मेरी एक दिन का टिकट वापस करके उसको दूसरे या तीसरे दिन ले लिया और नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी फ़ोन किया कि मेरे पास अभी 2 दिन बाकी है, यदि आप मुझे बुला सकते हो तो मैं कल आ सकता हूँ या फिर मैं परसों नागपुर छोड़कर 1 महीना के लिए मेरे टूर पे जा रहा हूँ। मालूम नहीं नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्या सोचा। उन्होंने पहला दिन तो जाने दिया, शायद हो सकता है वो पहला दिन उन्हें कोई चर्चा करने के लिए लगा होगा। जिस दिन मेरा एसआई में भाषण था, एसआई में मेरा स्टॉक था, उसी दिन नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मुझे अपने यहाँ आमंत्रित किया और सिलसिला इस तरह से शुरू हो गया। सवेरे 10 बजे से 3:30 बजे तक जब मैं एसआई में अपना टॉक दे रहा था, अपने विषय पे बात कर रहा था, तो मेरे के लोग ने भी उसी दिन को चुन लिया। लेकिन उन्होंने मुझे लाने के लिए गाड़ी भेजी और 3:30 बजे मैं एसआई से छुट्टी लेकर या अपना टॉक दूसरी और किसी गेस्ट लेक्चर को दे के निकल पड़ा। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में जब मैं पहुंचा तो देखा कि समय पर कोई भी आया ही नहीं था, इसलिए मुझे कहीं एक जगह पर बिठाया गया जहां मुझे पानी सर्व किया गया और पानी के साथ साथ में वहाँ का एक व्यक्ति, वहाँ गेस्ट हाउस में काम करने वाला मैनेजर, उससे मेरी वार्तालाप होना शुरू हो गया। वार्तालाप में बात ऐसी निकली कि गेस्ट हाउस का मैनेजर मुझे कहने लगा कि हमारा संबंध लोगों से नहीं आता, लोगों का हमारे से संबंध आता है। मुझे बात कुछ अलग सी लगी। मैंने दिल में सोचा, एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाला आदमी इस तरह से कैसी बात कर रहा। तो उसने अपनी परिभाषा में फिर से मुझे समझाया कि हमारा संबंध इसलिए नहीं आता क्योंकि हम अथॉरिटीज़ हैं, किसी भी चीज़ का इंस्पेक्शन करना है तो वो हमारे यहाँ आते हैं, इसलिए नागपुर के कलेक्टर को यदि ज़रूरत होगी तो वो हमसे बातचीत करता है, हमें उससे बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह का वार्तालाप मेरे लिए कुछ अटपटा सा लगा। मेरे दिलो दिमाग में वो बात बैठी नहीं, और इतना सशक्त गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से वीक बात करता है, मुझे काफ़ी चोट दिल में बैठी। एक 15-20 मिनट के बाद जब एक 27-28 लोग जमा हो गए तो मुझे दालन में बुलाया गया जहां मुझे एक टॉक देना था। टॉक देते समय ही मैंने नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोगों की तरफ देखा तो मुझे वो स्कूल के बच्चे के समान लगे। एक संस्था में काम करने वाले बुजुर्ग, अडल्ट
समझदार लोगों की एक जो टोली होती है, या एक उनमें जो एक प्रकार का संभाषण होता है, उस तरह का संभाषण या उस तरह की हालचाल मुझे उन लोगों में दिखाई नहीं पड़ी। उनके डायरेक्टर शायद उस दिन कहीं बाहर गए थे, तो उनकी अनुपस्थिति बताने के बाद मेरा टॉक शुरू हुआ और एक दो विषयों के बाद बात की कल्पना संवेदना इस टॉपिक पे आके रुकी। संवेदना, मेरा टॉपिक ये था कि संवेदना में अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने संवेदना में अपनी एक हलचल लोगों तक समझाई है, और उसे जगदीश सिंह साहब ने बड़े मिठास से गाया। उसके शब्द बोल अमिताभ बच्चन, हमारे बिग बी अमिताभ बच्चन ने दिए हैं। उस संवेदना की जब संवेदना मैंने समझाना कोशिश किया और उन लोगों के सामने मेरी बात छोड़ी, तो प्रेक्षक में से, ऑडियंस में से दो चार लोगों ने उस बात की हंसी निकाली, और एक ने प्रश्न किया कि बोरकर साहब, इसी तरह की संवेदना आपकी स्वयं की तो नहीं है। मुझे लगा जिस बात को हम लोग यहां तक पहुंचाना चाहते हैं, वो बात उलट दिशा से मेरे पास क्यों आ रही है। शायद हो सकता है नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसी तरह के विपरीत परिणाम हमेशा होते होंगे। इसलिए मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए उसी लोगों से कहा कि देखिए, मैं कहना चाहता हूं एक बात को, आप समझना चाहते हो उसको दूसरी तरफ से, तो मेरा कम्युनिकेशन आपसे हो नहीं पाएगा। दूसरी बात यह है कि मैं दिन भर बिजी था, इसलिए आज अभी मेरे पास शाम को वो ताकत नहीं है कि मैं आपको वही बात को बार से बार अनेक बार समझा के या दूसरे कोई कल्पना को लाकर आप तक के वो बात पहुंचा पाओगा। तो और एक हंसी का गुब्बारा किसी एक व्यक्ति ने भेजा और उन्होंने ये कहा कि बोरकर साहब, आज यदि आप थके हैं तो आज आपने आना नहीं था, और कोई दिन सोचना था आने के लिए। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आज ही मुझे आना था, क्योंकि मेरे दिलो दिमाग में ये बात पहले से ही भरी थी कि यहाँ काफ़ी विद्वान लोग रहते हैं, लेकिन विद्वान लोगों का मुझसे आज पाला पड़ा ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया, यहाँ सभी विद्वान लोग हैं। तो मैंने बोला कि इतने 25-26 लोगों में मुझे एक भी साइंटिस्ट दिख नहीं रहा। तो किसी ने प्रश्न किया, साइंटिस्ट की परिभाषा दिखने में आपकी कैसी है? मैंने कहा साइंटिस्ट यानी कैसा? साइंटिस्ट यानी बाल पके हैं, विकृत है, कपड़े की तरफ ध्यान नहीं है, इस तरह के लोगों को हम लोग साइंटिस्ट बोलते हैं। यहाँ तो सब टॉप टिप लोग दिखते हैं। बोले ऐसा क्यों? तो मैंने कहा एक जमाने में साइंटिस्ट लोग एक ट्यूब में दूसरी कुछ तो भी द्रव्य डालते थे, उसमें स्फोट होता था और रंग बदलते थे। तो लोगों की नज़र में आता था तो लोग बोलते थे अरे ये पागल आदमी, इसको बस्ती से निकालो। और उसको पागल बोल के बस्ती से निकाल के वो गांव के बाहर खेतों में या कोई जंगल में जाके अपना शोध लगाता था। और उसी अनुसंधान पे आज हम देखें कि हमारे पास फ्रिज है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास काफ़ी उपलब्धियां है जिसको हमने एक शतक पूर्ण पहले सोचा तक नहीं था। उन्होंने कहा, व्यक्ति ने कहा कि भाई वो जमाने का साइंटिस्ट अलग हो सकता है, आज के जमाने के साइंटिस्ट अलग हो गए। वो जमाने का साइंटिस्ट नहाता धोता नहीं होगा, लेकिन आज के जमाने के साइंटिस्ट तो नहाते धोते हो गए और होना भी चाहिए। मेरी दूसरी बात ये निकली और बातों का सिलसिला बढ़ता गया। मैंने कहा अरे भाई आज के साइंटिस्ट तो सिर्फ नहाते ही है, काम नहीं करते। तो
30-25 लोगों के उस जमाव में एक विरुद्ध कल्पना आना शुरू हो गई और उन्होंने बात की। फिर परिपक्वता पूछने के लिए मुझे प्रश्न किया, आपको कहना क्या है? मैंने कहा, अरे भाई साइंटिस्ट की बात छोड़ो, धोने नहाने की बात कर रहे हैं आप। आपका मेरी कॉलोनी जो है कितने लोग होंगे उसमें? एक 350-400 घर के ऊपर तो नहीं होंगे। आप देखिए, आपके 350-400 घर में जितना पानी लगता है उतना 5000 के लक्ष्मी नगर के कॉलोनी में नहीं लगता, जो लक्ष्मी नगर की बस्ती आप ही के बगल में है। तो मुझे प्रश्न पूछा गया कि आपको इसका अनुमान निकालने में आपके पास क्या यार्डस्टिक है? मैंने कहा मेरे पास यार्डस्टिक नहीं है, लेकिन मैंने किसी कारपोरेशन ऑफिस में इस जानकारी को पाया है। कोई तो भी बात कर रहा था और वहाँ बात वो मुझे समझने में आई और वही बात मैं आपके पास दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा, साहब आपके पास कोई लिखित सबूत नहीं है, फिर आप हम पे इस तरह से इल्ज़ाम कैसे लगा रहे हैं? मैंने कहा उन्हें कि बात ऐसी है, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जब शुरू की होगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा होगा इट्स अ मॉडल कॉलोनी। मॉडल कॉलोनी कैसी होती है? पहले उसका प्रोजेक्ट बनाया जाता है और बाद में लोग रहने जाते हैं। हमारे बस्ती में वैसा नहीं होता, पहले आदमी रहने जाता है, फिर अपने आवश्यक वैसी वो मकान बनाना शुरू कर देता है। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में इस तरह की बात नहीं होगी। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग ने जब अपनी शुरुआत की होगी तो एक प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट बनाने में पहले सोचा होगा कि हमारे यहाँ कौन होगे, तो एक डायरेक्टर होगा, फिर कितने रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हो गए, तो भाई 25 हो गए, तो 25 लोगों के लिए घर बनाए गए। फिर उनके हाथ में नीचे में ओएस कितने हो गए, क्लर्क कितने हो गए, प्यून कितने हो गए, बागवान कितना होगा, तो उसके लिए फिर उस तरह से मकान बनाए गए। फिर सोचा होगा कि अरे बाप रे, हमने 5 कमरे डायरेक्टर के लिए भी बनाए और 5 कमरे का मकान साइंटिस्ट के लिए भी रखा, तो दोनों में कुछ अलग सा दिखना चाहिए, क्योंकि एक रूम और बढ़ा दिया डायरेक्टर के लिए। अरे भाई डायरेक्टर के घर में 2 ही आदमी रहते होंगे, माँ पिताजी, या माँ पिताजी भी नहीं होंगे, 2 बच्चे ही होंगे, लेकिन कमरे 6। बस्ती में वैसा नहीं होता। बस्ती में जितनी जरूरत होती उस मुताबिक आदमी अपने घर को बढ़ाते जाता है। उन्होंने कहा, बोरकर साहब आप सही में हर एक बात को विरुद्ध दिशा से हमारी तरफ देखने की आपने आज दृष्टिकोण रख दिया है। मैंने कहा भाई विरुद्ध दिशा से क्या बात है? मैंने आपके ऑफिस को यही मेरे टॉक के लिए 4 से 5 पत्र लिखे हैं। आज ही सवेरे जब मैं ऐसा में स्पीच देने गया था तो उसके पहले मैंने एक लेटर टाइप किया और वो लेटर मेरे किसी आदमी के हाथ से आपके यहाँ भेजा है। उसने डिस्पैच क्लर्क से साइन भी लिया, मैंने बाद में बात भी की, लेकिन 4-5 प्रश्न पत्र लिखने के बाद भी आपके ऑफिस से मुझे एक भी पत्र का जवाब नहीं मिला। तो राम शेट्टी was or something, some scientist was there. He asked his junior or his clerk कि मैडम आपने प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया? इतने उनके पत्र आए तो मैडम कहने लगी, सर बात ऐसी हुई कि आज दिनों में लाइट कभी बहुत बार आती जाती है ना, तो इसलिए प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। तो उन्होंने मुझे समझाया कि बोरकर साहब वो चिट्ठी का जवाब तो देना चाहते थे, लेकिन ये लाइट का फ्लक्चुएशन है, लाइट आती है जाती है, इसलिए उन्होंने आपको पत्र नहीं लिखे होंगे, आई एम सॉरी। मैंने कहा अरे भाई आपका इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, आपके यहाँ लाइट जाती है, मेरे यहाँ लाइट नहीं जाती होगी, मेरे यहाँ भी लाइट जाती है, लेकिन आपके यहाँ पत्र भेजने के लिए मैंने कोशिश की, आपको लगा क्या करना है, कौन पूछता है, और पत्र देने में क्या जरूरत है? एक चिट्ठी बनाने के लिए भी आपको तकलीफ हुई। वही मेरे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जहां बिल्कुल कम स्टाफ है, वहां पर भी मैं 3 या 4 चिट्ठी आपको लिख पाया, आपका एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया। बात का सिलसिला करते करते इसी तरह बात बढ़ गई और किसी और एक व्यक्ति ने कहा कि फिर हम लोग यहाँ करते क्या होगे?
ये प्रश्न होता। प्रेक्षकों से ऐसा जवाब आने के बाद मेरे बात को, मेरे संवेदना को और अधिक संवेदना मिलना शुरू हो गया। मैंने कहा नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में क्या फैसिलिटीज नहीं है? सारी फैसिलिटीज है। आपके यहाँ स्विमिंग पूल है, आपके यहाँ पोस्ट ऑफिस है, आपके यहाँ पेट्रोल पंप है। अब मुझे बताइए 300 लोगों के लिए, 300 लोगों ऑफिस में, तो हम तो 300 350 लोगों की कॉलोनी की बात कर रहे हैं। एक 125 150 लोगों के लिए हर एक के पास गाड़ियां भी नहीं होगी, लेकिन आपको पेट्रोल पंप की क्या जरूरत है? अरे भाई, एक जमाने में नागपुर में आपके विसिनिटी में, आपके एरिया में मेरे ख्याल से 3 या 4 पेट्रोल पंप हो गए, वो भी 2.5 या 3 किलोमीटर के लगभग दूरी पे। अभी तो किलोमीटर छोड़ो, सिर्फ मीटर पे आपके पास पेट्रोल पंप है। लेकिन गवर्नमेंट ने आपको एक बार पेट्रोल पंप अलॉट कर दिया, आपको सस्ते दर पर उसको पेट्रोल मिलता है। आपके सब घर के लोग कंसेशन रेट में पेट्रोल भरना यहीं आते हैं। यहां यदि बाहर के आदमी को आना है तो उसे काफी परेशानी होती है, लेकिन सभी सिक्योरिटी आपकी है। आपने उन्हें जवाब दे दिया है कि भाई हमारे एम्प्लॉयज़ के कोई पहचान के लोग आएंगे या हमारे एम्प्लॉयज़ का कोई आदमी आएगा तो उसे छोड़ दीजिए। अब सिक्योरिटी भी आपकी, और सिक्योरिटी आपकी होने की वजह से जो ऑर्डर आप देंगे वही ऑर्डर का पालन वो करेंगे। आपको बताने वाला कोई व्यक्ति आया नहीं आज तक है। मैंने तो यहां तक के सुना कि नागपुर में यदि प्राइम मिनिस्टर भी आ जाता है या कोई सेंटर का मिनिस्टर भी आ जाता है तो वो नेरी के प्रांगण में, परिक्षेत्र में घुस नहीं सकता। इस तरह की भाषा आपके ऑफिसर लोग यहां करते हैं। बात आगे बढ़ गई और उन्होंने बोला कि पेट्रोल पंप है तो उसे आपका नुकसान क्या है? ना, मेरा का कुछ नुकसान नहीं है भाई, लेकिन बात ऐसी है कि आपको एक बार पेट्रोल पंप के लिए काफी दूर जाना था करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या आपके कई एक्स डायरेक्टर ने पेट्रोल पंप के लिए एक सैंक्शन मांग लिया होगा। आज उसकी जरूरत नहीं है तो उसको रिटर्न कर दो। लेकिन गवर्नमेंट से फंड्स मिलते हैं, उसको आप यूटिलाइजेशन कब तक करोगे? वैसा देखिए पोस्ट ऑफिस, आपके नेरे में एक पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस कहाँ है? एकदम अंदर में, आपके दफ्तर में, आपके ऑफिस के बाजू में। हमारे नागपुर टाइम्स में जहां मैं काम करता था, हमारे यहाँ भी एक नागपुर टाइम्स में नागपुर टाइम्स पोस्ट ऑफिस था। आज भी वो नागपुर टाइम्स पोस्ट ऑफिस है। लेकिन हमारा नागपुर टाइम्स का काम होने के बाद यदि समय मिलता था या कोई बूढ़ा आदमी धूपकाले में उस पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी या कुछ तो भी पत्र लेने आता था, तो वहाँ का पोस्ट मास्टर सोचता था कि भाई धूप है, बूढ़ा आदमी है, चिट्ठी लेना है तो इसको दूर के पोस्ट ऑफिस में क्यों भेजे। और वो पोस्ट ऑफिस हमारा पब्लिक के लिए भी असेस था। आपने पोस्ट ऑफिस ले लिया अपने पास। आप लोगों की ये आदत मुझे कभी समझने में नहीं आई। सिक्योरिटी आपकी, वहाँ आने वाला आदमी यदि किसी आदमी का नाम बताए तो वो घुस जाता है। और मैंने तो यहाँ तक के सुना है कि घर में काम न होने वाले लोग, आपके फैमिली मेंबर्स ऑफिस में आके आपके साथ बातचीत करते हैं और वैसे ही समय गुजरता है। उन लोगों को मेरी बात काफ़ी तीखी लगी, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके सारे अनुमान झूठे, आप जो कुछ भी हमको बता रहे हैं इसका कोई भी ताल मेल यहाँ नहीं है। किसने बताया आपको कि हमारे? मैंने कहा देखिए, नेरी और नेरी कॉलोनी में कितना अंतर है। नेरी से गेट के बाहर निकले तो मेरे जहाँ तक ख्याल है 40 फुट या अधिकतर 60 फुट का रोड पार नहीं करते तो नेरी की कॉलोनी है। अब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपको पेट्रोल कितना लगता होगा, लेकिन आपके यहाँ पेट्रोल पंप है। स्विमिंग पूल की बात अलग है, चलो आपकी हेल्थ चुस्त रहना चाहिए, आपके परिवार की हेल्थ चुस्त रहना चाहिए। पोस्ट ऑफिस है, आपने पोस्ट ऑफिस को जगह इस तरह सज दी कि आपने वो पोस्ट ऑफिस को संकुचित करके रखा। भले आपकी तरफ से बिजनेस जाता होगा वो बात अलग है, लेकिन पोस्ट ऑफिस यदि इस एरिया में है तो यहाँ के आजू बाजू के लोगों को भी उसका फायदा होना चाहिए। लेकिन आप लोग सीमित लोग लगते हैं। बात की बढ़ते बढ़ते उन्होंने और आगे को
बता दिया और उन्होंने बात की स्पष्टता की कि बोरकर साहब, आपके कल्पना में नीरी के बारे में एक विरुद्ध ही कल्पना दिखाई देती है। मैंने कहा, अरे भाई, विरुद्ध कल्पना क्या? आप देखिए, आपके यहां कोई चीज लिख ले गई, कोई चीज खरीदी आपने, जब तक 15% उस आदमी को पहुंचता नहीं है, आपके बिल पास होते नहीं। ये आपकी इज्जत आपके लोगों के दिले दिमाग में है। आपके यहां आप लोग हर साल में एक कैलेंडर निकालते हैं। आपने देखा आपका कैलेंडर? मुझे नहीं लगता उस कैलेंडर की कीमत 100-200 होगी, उस कैलेंडर की कीमत 500 के लगभग होगी। कितना अच्छा पेपर और प्रिंट आप इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये नहीं समझता कि आप कैलेंडर क्यों निकालते हैं। अरे भाई, आप यदि किसी दुकान में गए, कपड़ा लेने गए, किराना लेने गए, तो वो आदमी ने कहना चाहिए आपको कि साइंटिस्ट साहब, ये मैंने कैलेंडर बनाया है मेरे दुकान का, आप अपने दफ्तर में और घर में लगाइए। बात ऐसी है, यहां विरुद्ध है। आप अपना कैलेंडर उसको बोलते मेरा ये कैलेंडर अपने कपड़े की दुकान में या किराने की दुकान में लगाइए। अरे भाई, साइंटिस्ट बोले तो आपके तो लोग ने पैर पकड़ना चाहिए बाहर जाने के बाद, लेकिन आपको कोई बाहर में पहचानता ही नहीं है। उनके दिमाग में ये बात आई और उन्होंने कहा, किसी भी बड़ी संस्था को कैलेंडर छपाना एक अपने अस्मिता की बात बताने लायक है। बोरकर साहब, यहाँ आप फिर गलत बोल रहे हो। मैंने कहा, ठीक है, कैलेंडर आप निकालते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, 200-250 लोगों की कर्मचारी की इसमें हर एक के लिए उसका एक्सटेंशन नंबर और उसकी डायरेक्टरी निकालने की क्या जरूरत है आप लोगों को? कितने एक्सटेंशन है आपके नेरी में, लेकिन आप उसके लिए भी निकालते। अरे भाई, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, टाइप करके रख दिया, या जिस व्यक्ति से आपका संबंध आता है उतने ही। मुझे नहीं लगता होगा कि हर एक आदमी रोज डायरेक्टर को बात करता होगा या फोन करता होगा। इसका मतलब यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन का अकाउंट्स है, अकाउंट्स का किसी क्लर्क से, क्लर्क का किसी चपरासी से, इसी तरह के व्यवहार हमारे यहाँ ऑफिस में चलते हैं। तो फिर आपको इस तरह की डायरेक्टरी बनाने की और फाजुल खर्चा करने की क्या जरूरत है? ये तो हमें किसी ने प्रथम बताया नहीं। इस तरह के उस अफसर ने मुझसे बात करना शुरू कर दिया। हमने यही कहा कि साहब, बात यहीं आके बैठती है कि जब मैं किसी बात को लेकर आपके सामने प्रश्न रख रहा था, तो आपने उसको विरुद्ध दिशा से समझने की कोशिश की, और जब मैंने विरुद्ध दिशा से आपके बारे में क्या लोगों के में जानकारी है वो स्पष्ट करने लगा, तो आपको बुरा लगने लगा। तो किसी एक सज्जन ने खड़े होके उन लोगों को समझाया कि सुनिए, लास्ट टाइम मैं जापान में गया था किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, और उस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के विरुद्ध में कोई तो भी चर्चा हो रही थी, और किसी चर्चा में किसी जापान के लोगों ने, उस ऑर्गेनाइजर ने कहा कि अमेरिका हर तरफ लड़ाई करती है, अमेरिका ने बहुत तकलीफ दिया, अमेरिका ने रिसर्च करने के बाद लोगों पे बॉम्बिंग की है। लेकिन अमेरिका एक तरफ तकलीफ देती है, लेकिन वो रिसर्च वर्क में आप लोग को उसके फायदे भी होते हैं। इसलिए अमेरिका को देखने का अपना जो दृष्टिकोण है वो अलग होना चाहिए। हमने उसी तरह नहीं देखना चाहिए जो एक साधारण व्यक्ति देखता है। इसलिए मिस्टर बोरकर के जो भी टॉक है वो आपको भलाई बांधती है। यदि गलत लग रहे हैं तो आप उसको उस तरह से न लेकर उसको पॉजिटिव लुक देने की कोशिश कीजिए। हमारे यहाँ अब देखिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी है वो एक बार शुरू हो गए कि वो बंद ही नहीं होते, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऐसी है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस ग्रांट यदि मांगता है तो एक बार उसको लाख रुपए ग्रांट मिल गई तो वो चाहता है कि अगले साल 1.25 लाख, उसके 1.5 लाख, उसके बाद 2 लाख, वो उससे कम नहीं सोचता, और वो कहना चाहता है कि एक्सपेंसेस हमेशा ही बढ़ते रहते हैं। हमारा श्रीकांत जिचकार था, हमारा श्रीकांत जिचकार ने लास्ट टाइम कहा था एक भाषण में कि 0 बजट आना चाहिए। हर एक व्यक्ति ने, हर एक अफसर ने, हर एक ऑफिस ने अपना एक बजट हर साल बनाना चाहिए। और यदि लास्ट ईयर में हमने कपड़े लिए होंगे या कोई कपड़ा हमारे
हमारे क्लॉथ के लिए, हमारे टेबल के लिए, हमारे खिड़कियों के लिए हमने कर्टन्स करके इस्तेमाल किए होंगे, तो कर्टन्स को हमको हर साल बदलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पैसा है तो वो कर्टन्स को बदला के नए कर्टन्स ले आते हैं, टेबल के क्लॉथ चेंज कर देते हैं। इस तरह की व्यवहार, इस तरह का बर्ताव रुकने के लिए ही श्रीकांत जिचकार ने जीरो बजट लाया था। आप भी साइंटिस्ट लोग हैं, इस तरह का जीरो बजट मत लाइए, लेकिन अपने आप को थोड़ा समुचित, थोड़ा खर्चा कम करके देश के निर्माण के लिए आप कुछ बहुत सारी मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कौन करता है, लेकिन हर एक आदमी यही सोचता है कि मुझे ज़्यादा मिले, ज़्यादा पगार मिले। हमारे यहाँ मेरी पत्रकारिता के कल्पना में इसी तरह के संस्थाएं पलते हैं और इसका सबका टैक्स हमारे कॉमन आदमी पे लगता है। मैं उदाहरण पे दूंगा, CPWD ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो गाजियाबाद में है, नेशनल फायर कॉलेज नागपुर का देखिए, आज नेशनल फायर कॉलेज में कोई फॉरेनर आपको दिखाई नहीं देता, कोई स्टूडेंट फॉरेनर दिखाई नहीं देता। मैं जब वहाँ पढ़ाने जाता था तो मैंने पूछा कि एक ज़माने में यहाँ फॉरेनर लोग स्टूडेंट करके पढ़ने आते थे, अभी फॉरेनर आदमी अपने नेशनल फायर कॉलेज में दिखाई नहीं देते। तो कोई मुस्लिम आदमी मुझसे बात कर रहा था, मुझे नाम याद नहीं, उन्होंने कहा भाई फॉरेनर ऑफिसर को, फॉरेनर ऑफिसर मतलब फॉरेनर स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट कहाँ होता है, वो कहीं तो भी काम करता है, कोई तो भी फायर ब्रिगेड में काम करता है और वहाँ से वो हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए आता है। जब वो फॉरेन से यहाँ आता है तो उसकी जवाबदारी हम पे बढ़ती है, कुछ कम ज़्यादा हो गया तो हमें सवाल का जवाब काफ़ी देना पड़ता है। इसलिए हमने, हमारे एक्स डायरेक्टर ने फॉरेनर ऑफिसर को यहाँ एडमिशन देना ही बंद कर दिया। मतलब हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करने की कोशिश करते हैं। सिविल डिफेंस, मैं सिविल डिफेंस का कुछ समय के लिए PRO था। सिविल डिफेंस नागपुर में कॉलेज है, मैंने एक आर्टिकल भी उनके लिए लिखा है, मेरे ख्याल से 2002 में या 2001 में। बात ऐसी है, सिविल डिफेंस कॉलेज में भी लड़के मिलते ही नहीं है। किसी पुलिस वालों के दफ्तर से या कोई फायर ब्रिगेड के कोई ऑफिसर स्टेट से उनको रिक्विजिशन देना पड़ता है। भाई कॉलेज चलेगा नहीं तो हम यहाँ का डायरेक्टर काम कैसे करेगा। वो कॉलेज बंद होने के सीमा में है, क्योंकि हमारे पास कृति इस तरह से नहीं। हम एक बार गवर्नमेंट ने यदि ग्रांट दे दी, एक बार यदि गवर्नमेंट ने सोच लिया। अभी देखिए ना, नेशनल इन्वायरमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को यदि 1960 में शुरू किया होगा तो 1960 के बाद आज 40 और 45 साल के बाद अभी कोई दिशा, कोई पोकली नहीं रही होगी, कोई डेंसिटी नहीं होगी कि अभी हम नए कुछ जगह रिसर्च कर सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट को बंद कर देना चाहिए। लेकिन सालों साल ये इंस्टीट्यूट चल रही है और हमारे लिमिटेड कंपनी जिस तरह से अपना लेखा जोखा देते हैं, उस तरह का लेखा जोखा देने की बात निरी कहां करती है। निरी में तो एक है, ऑफिस शुरू हुआ, ऑफिस बंद हुआ, ऑफिस शुरू हुआ, ऑफिस बंद हुआ, फिर ऑफिस शुरू हुआ और ऑफिस बंद, यही सालों से यहां चलते आ रहा है। नीरे ने तो अपने साइंटिस्ट लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आज तो टीवी के माध्यम से, पहले तो पेपर और आकाशवाणी था, अभी तो कम्युनिकेशन के कितने अधिक हमारे पास उपलब्धियां हैं। लेकिन यहाँ के रिसर्च करने वाले डॉक्टर को बाहर में कोई अहमियत देता होगा या पहचानता होगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि यहाँ का स्कॉलर, यहाँ का साइंटिस्ट 10 बजे आता है और 5 बजे जाता है। उसको मालूम है मुझे मेरे पगार से मतलब है, उसको मालूम है मुझे मेरी 1 तारीख की तनख्वाह मिल जाना चाहिए। इसलिए हमने हमारे विचारों को संकुचित से और ज्यादा संकुचित कर लिए। इसलिए हमारा पोस्ट ऑफिस, हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारा पोस्ट ऑफिस और किसी के काम में आए। हमने सोचा ही नहीं कि पेट्रोल पंप है हमारे पास, अभी तो पेट्रोल पंप हमारे नजदीक आ गया है। ये पेट्रोल पंप को बंद करने में एक कम से कम 2 आदमी की रोजी कम कर पाएंगे या हमारे यहाँ का बजट कम हो पाएगा। कभी हमने सोचा ही नहीं कि हमारे यहाँ पानी जो लगती है, हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी लगता है, उसका हम कुछ कम खर्चा करें।
अभी तो लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हर एक आदमी ये सोचेगा कि मुझे मिलता है, मुझे दूसरे का क्या करने का, मुझे देश का क्या करना है, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन यही बात हमारे संस्था में अधिक दिखती है। एक बार मैं सदर में सिविल लाइंस में जा रहा था, तो मैंने देखा जजेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। लास्ट टाइम मैं जब हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट याचिका लेके गया था, तो मुझे कम्युनिकेशन में जज के साथ में कुछ थोड़े 2-3 विचार देने थे जो मैं दे नहीं पाया। तो मैं सोच रहा था कि भाई यहाँ जजेस को ट्रेनिंग सेंटर है, तो सिविल लाइंस में वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर के बाजू में मैंने मेरे स्कूटर को बाजू में किया और अंदर गया। भीतर जाने के बाद वहाँ के ओएस से बात किया, तो उन्होंने पहले मुझे प्रश्न पूछा, आप आए कहाँ से। मैंने कहा मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो बोले आपका क्या काम है। तो उन्होंने मेरा काम ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने पहली बात तो मुझे वहाँ से उनको अंदर आना मेरा उचित ही नहीं लगा। बाद में कहीं मैंने टैकल करके उस ओएस से बात किया और उनको कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके यहाँ जो जजेस लोग पढ़ने आते हैं तो उनको जो सब्जेक्ट लेते हैं वो सब्जेक्ट में यदि एक आधा सब्जेक्ट मेरे लिए होगा तो मैं यहाँ देना चाहूँगा। तो उन्होंने पूछा आप काम क्या करते हैं, आप कहाँ के जज हैं। तो मैंने कहा मैं जज नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ। तो बोले नहीं, पत्रकार यहाँ पढ़ाता नहीं, यहाँ बड़े बड़े जजेस लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो मैंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही जानकारी चाहिए कि भाई जजेस लोगों को आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हो वो सब्जेक्ट मुझे मेरे जानकारी के लिए चाहिए। तो बोले आप क्या करोगे उसके। मैंने बोला मेरे को करना कुछ नहीं है, आप मुझे उसकी कॉपी दे दिए, झेरॉक्स भी दी तो चल जाएगी, मुझे उसके पे स्टडी करना है। उसने कहा नहीं साहब, वो आपको नहीं, पूछ के देना पड़ेगा, वो आपको नहीं दे सकते। तो मैंने बोला देने की ज़रूरत छोड़ो, आप मुझे ऐसा करो, सिर्फ मुझे वो पढ़ने दे दीजिए, मैं पढ़ के आपको वापस कर देता हूँ। मालूम नहीं उनको क्या लगा, उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए भी वो सब्जेक्ट दिए नहीं। बाद में मैं 2-3 दिन के बाद या 8 दिन के बाद फिर गया, उनको पूछा तो बोले नहीं, हमारे साहब ने बताया कि ऐसी कोई चीज़ हमारे यहाँ से किसी पत्रकार को नहीं देना चाहिए। मैंने बोला आपके डायरेक्टर है आज। तो बोले नहीं, आज भी नहीं है, आप कभी किसी दिन आइए। 1-2 महीने के बाद जब मैं उसी रोड से जा रहा था तो फिर मैंने वहाँ पे जाने का प्रयत्न किया, गया और पूछा। तो उस दिन नसीब से डायरेक्टर साहब थे, वो डायरेक्टर शायद मेरे ख्याल से अकोला के थे, मेरे कोई पत्रकार मित्र के मामा थे। तो मैंने उनको उसी वक्त पहचाना और बात करना शुरू कर दिया। नाम मुझे याद नहीं। उनसे बात करने के बाद भी उन्होंने कहा कि मुझे आपको इस तरह की जानकारी देने के लिए हमारे चीफ जस्टिस को पूछना पड़ेगा, क्योंकि हम चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र के अंतर्गत काम करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं आपको चिट्ठी दे दूं कि मुझे ये जानकारी चाहिए थी, या सब्जेक्ट की क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा उसकी ज़रूरत नहीं। तो मैंने कहा मैं अभी आ ही गया हूँ, तो मैं एक लेटर दे देता हूँ, आप उसको इन्वर्ट कर लीजिए, तो आपके लिए भी सुविधा होगी। वो कहने लगे मुझे नहीं लगता कि हमारे जज साहब बोलेंगे आपको कि इन्फॉर्मेशन दो करके, क्योंकि ये हमारा अंतर्गत मामला है, यहाँ की बातें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे ये समझता नहीं कि नेशनल का कॉलेज है, जज लोगों को क्या ट्रेनिंग मिलता है, ये आम आदमी को बताने के लिए शर्म क्या है। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट अंदर में क्या करती है। यदि भाई नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यदि कोई बॉम्ब बनाती है, एक आधा मैप बनाती है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को, बाहर के व्यक्ति को पता चला तो हमारे यहाँ डिफेंस का कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन वो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग पौधे लगाने का काम करती है, अब उसमें भी छुपाई क्या है। अब मुझे बताइए जज लोगों को क्या पढ़ाते हैं, ये यदि मैं पूछने गया और किताब लेटर दिया तो मुझे समझाना था, कम से कम पढ़ने देना था, लेकिन ओरल भी नहीं बता पाए। हमारे जानकारी देने की कोई परिस्थिति नहीं। और जितने भी हमारे यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो इसी तरह काम करते हैं। मैं लास्ट टाइम एनआरटीसी में गया, नासिक में। एनआरटीसी, दैट मस्ट बी ए नासिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। नासिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में जब मैं दाखिल हुआ अंदर, तो वहाँ मिस्टर केरकर करके उस जमाने में डायरेक्टर थे। उनसे पूछा
आप यहाँ क्या करते हैं, मुझे थोड़ी जानकारी चाहिए, मेरा यहाँ पे मोटिवेशन टॉक है 2 दिन के बाद, आप भी आइए। तो उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पे रिसर्च करते हैं और यहाँ सभी पानी से संबंधित विषयों पे जानकारी देते हैं। उन्होंने काफ़ी बढ़ाई की अपने दफ्तर की, और मैंने कहा उनको कि कम्युनिकेशन में मेरा एक अपना प्रभुत्व है। उन्होंने सुना भी मुझे और कहा कि अगले वक्त आपको हम हमारे यहाँ एक टॉक देने के लिए बुलाएंगे। 4-5 महीना हो गया, मैं हमेशा केरकर साहब से बात करता था, और केरकर साहब से बातचीत होने के बाद ये देखा कि केरकर साहब वहाँ से बदल कर कोई मोरे साहब आ गए। मोरे साहब को फिर वही बात समझाया। मोरे साहब ने कहा मुझे कि मैं बहुत बिजी हूँ, कल मुझे बम्बई में मेरे मेंबर सेक्रेटरी को इन्फॉर्मेशन देना है, तो आप ज़रा संक्षिप्त में बात करके मुझे बता दीजिए। उन्होंने किसी काकड़े साहब के तरफ भेजा मुझे। काकड़े साहब ने देखा कि मैं टॉक दे सकता हूँ, मेरे पास पेपर्स हैं, तो उन्होंने बताया कि वो लेडी है वहाँ पे, उस लेडी के पास जाके आप अपना इनरोलमेंट कर लीजिए। बाद में मालूम नहीं उनके दिमाग में क्या आया, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, आपका इनरोलमेंट पहले ही हुआ है। मेरे को ये नहीं समझा कि जब पहले यदि वो कहते हैं कि आप इनरोलमेंट कर ले, तो उसी वक्त उन्होंने क्यों नहीं बोला, और फिर बाद में बता रहे। मुझे बाद में पता चला कि वो लेडीज उस दिन अब्सेंट है। कहने का मतलब ऑफिस में आते ही नहीं। यशोदा हमारे महाराष्ट्र में गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन बाने रोड पुणे में है। आप देखिए जितने भी आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड हो जाते हैं, जिनके भी मिनिस्ट्री से अच्छी जानकारी है, वो सब लोग वहां चिपक जाते हैं। यशोदा कुछ काम नहीं करते। मेरा एक मित्र है जी डोंगरे, वो पोस्टल ऑफिस में काम करता है, अभी भी नागपुर में पोस्ट ऑफिस में काम करता है। लास्ट टाइम वो मुझे मिले तो मैंने पूछा उनको कि भाई आप बड़े व्यस्त दिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बोरकर साहब मैं कल ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा ट्रेनिंग के लिए तो आप लास्ट टाइम भी गए थे। तो डोंगरे बोला क्या है, वो ट्रेनिंग कॉलेज उन्होंने बना लिया गवर्नमेंट ने, अब ऐसा है उनका ट्रेनिंग कॉलेज चलना चाहिए, वहाँ की रोजी रोटी मिलना चाहिए करके किसी को तो भी 2-4 लोगों को उन लोग ट्रेनिंग के लिए बुलाते। एक्चुअली वहाँ पढ़ाया गिराया कुछ नहीं जाता है। कारण ये है कि यदि ट्रेनिंग कॉलेज बंद हो गया तो वहाँ के डायरेक्टर को पगार कहाँ से मिलेगा। और उसने कहा कि पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर हार्नी एरोड्राम वडोदरा में गुजरात में, वो इसके पहले भी जाके आया। उसके बाद 4-5 बार उसको जाने की कोई मतलब उसके साहब ने बताया भी कि आप ट्रेनिंग के लिए चले जाइए। मतलब वहाँ पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन एक कॉलेज चलने के लिए इस तरह का लोगों पे बात को लादे जाता है, और लादने के बाद उसको जबरदस्ती उस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। लास्ट टाइम मेरे पास और एक मेरा ऑफिस में कोराडी ट्रेनिंग सेंटर से एक दीपक डोले करके वहाँ स्टेनो आया। मैं कुछ टाइप कर रहा था टाइपराइटर पे, वो भी टाइपराइटर में क्या होता है कि जब हम कागज रोल करते हैं तो हमारी तरफ लिखे जाता है, और पीछे साइड से जो देखने वाला आदमी लगता है उसको लगता है कि वो पन्ना जो है वो कोरा है। वो बातें करते करते मुझे कहने लग गया कि हमारा इंस्टीट्यूट में तो ऐसा है, वहाँ तो लोग सोते हैं। हमारा तो डायरेक्टर कोराडी ट्रेनिंग सेंटर में, वो एजुकेशन अपने कोराडी ट्रेनिंग सेंटर में MSCB जनरल, वहाँ जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे तो रोज लंच लेने के बाद सोता है, काम ही नहीं रहता। मैंने बोला कि मैं पत्रकार हूँ, मेरे सामने ऐसी बात कर रहे हो तुम, मैं यदि छपा दोगा तो बोले छपा कहाँ रहे, तुम्हारा कागज तो कोरा है, तुम तो सिर्फ उंगलियाँ चला रहे। कुछ दिन के बाद मैंने उस आर्टिकल को छपा दिया, और वो छपने के बाद वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मुझे बताया गया कि नासिक से कोई इंक्वायरी आई, और इंक्वायरी आने के बाद वहाँ के डायरेक्टर ने अप्रोच निकाला और देखा कि ये शरद बोरकर नाम का पत्रकार कौन है। वो मेरे से डायरेक्ट तो नहीं मिले, लेकिन उस जमाने के हमारे PS महाजन करके डिप्टी डायरेक्टर थे नागपुर में, उनके थ्रू उन्होंने मुझे फ़ोन पर बात की,
और उन्होंने कहा कि वे उनके मित्र हैं, वो एक ही कॉलेज में या स्कूल में पढ़ते थे। मैंने कहा मेरी पत्रकारिता है, मैंने जो भी किया वो आपके किसी दफ्तर के ऑफिसर ने मुझे बताया। लेकिन बोले साहब उसके लिए तो हमारे पे इंक्वायरी हो गई। कहने का मतलब यह है कि हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, हमारे जो रिसर्च संस्था हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है, हमने उसको बंद कर देना चाहिए। पिछले वक्त सिविल डिफेंस कॉलेज में प्रेम प्रकरण बाहर आया, ये काम में नहीं रहता है ना। सुना गया है कि वहां का एक क्लर्क या वहां का एक काम करने वाला व्यक्ति, ओएस है, कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर है शायद, उस लेडीज के घर गया और वहां जाके उसको भला बुरा बोल के आया। मुझे ये नहीं समझता, जो आदमी विपरीत मतलब जिस आदमी को किसी का घर नहीं मालूम, वो अपने काम करने वाले कलीग के घर जाके उसकी इंक्वायरी शुरू है, उसके पे इंक्वायरी बिठाई गई और बाद में पता चला कि कोई सबूत न मिले करके वो केस को बाद में नज़रअंदाज करते गए। मेरा ये कहना है कि हम लोग नेशनल प्रॉपर्टी बनाने की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए। ये बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं इनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं। अभी नीरी की बात लीजिए, नीरी ये प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आती है। प्राइम मिनिस्टर के पास अनेक काम है। नीरी 45 साल पहले शुरू हुई होगी और नीरी ने सही में काम किया होगा तो काफी अनुसंधान भी किए होंगे। अब पौधों में अनुसंधान करने की कोई जरूरत नहीं होगी। गवर्नमेंट ने या हमारे यंत्रणा ने उन्हें ऐसा मार्गदर्शन करना चाहिए या उनके पे इस तरह से नजर रखनी चाहिए कि वो साल भर में क्या करते हैं, उसका तख्ता उन्होंने पब्लिक के सामने पेपर के माध्यम से देना चाहिए। यही तो हमारी लिमिटेड कंपनी करती है, क्यों हम लोग संशोधित संस्थाएं नहीं कर सकती हैं? मेरा कहना यह है कि ये जो भी संस्थाएं बनी हैं उन्होंने एक नयापन लाके, एक दिलचस्पी लाके समाज के सामने अपना अस्तित्व हाय करके बताना चाहिए। धन्यवाद।